السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، مقالے کا عنوان ہے گردن آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا استعمال۔ سامعین کرام، جب اسلام آیا اس وقت غلامی کا سسٹم عام تھا۔ یہ صرف عربوں کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں تھا۔ وہ غلام نسل در نسل غلام ہی رہتے تھے تو وہ انسان ہی، مگر ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ انسانیت کے تمام حقوق سے وہ محروم تھے۔ جب اسلام آیا تو جس طرح اس نے سماج میں بکھری ہوئی بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا، اسی طرح ان غلاموں کو بھی انسان ہونے کا حق دیا۔ ان کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحم دلی کا معاملہ کیا۔ اسلام میں غلاموں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ غلاموں کے ساتھ انسانیت نوازی کا ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، انہیں مارنے پیٹنے سے منع کیا، ان سے طاقت سے زیادہ کام لینے سے منع کیا۔ غلاموں کے ساتھ رحم دلی کا دوسرا بڑا مظہر یہ ہے کہ ان غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد کرنے کے مختلف جتن کیے۔ چنانچہ ان غلاموں کے مالکان کو جگہ جگہ اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کریں اور انہیں آزاد کرنے کو جہنم سے آزادی کا سبب بتایا۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، جیسے قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، قسم کا کفارہ، رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کا کفارہ۔ اسی طرح غلام کے ساتھ مکاتبے کا حکم دیا، غلام کو ما بعد الموت مدبر بنانے کا حکم دیا۔ ان سب کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے اس مقہور طبقے کو غلامی کے دلدل سے آزادی ملے اور وہ بھی سماج میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کو اتنی اہمیت دی کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف زکوٰۃ کے مال سے غلام کو آزاد کرنا بھی رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے اس میں فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، رقاب یہ رقبہ کی جمع ہے۔ رقبہ مطلب ہوتا ہے گردن۔ اس زمانے میں جب غلامی کا سسٹم تھا تو یہ سسٹم تھا، غلاموں کو جب کسی کو غلام بنایا جاتا تھا تو اس کے ہاتھ کو پیچھے گردن کے ساتھ ملا کر کے باندھ دیا جاتا تھا۔ اسی سے ان کا نام رقبہ یا رقاب پڑ گیا۔ تو رقاب سے مراد یہاں پر ہے غلام۔ زکوٰۃ کے مال سے 4 طرح کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال سے 4 طرح کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے اپنی آزادی کے لیے سودا کیا ہو اور اس کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہو کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا جس کے بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دیں گے، جس کو کہ شریعت کی اصطلاح میں مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ اس غلام اور اس کے آقا کے درمیان طے شدہ رقم کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کر دیا جائے گا تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ دوسری شکل ہے غلام کو آزاد کرنے کی کہ زکوٰۃ کے مال سے کسی ایسے غلام کو خرید کر آزاد کرنا جس نے مکاتبہ نہیں کیا ہوا ہو۔ تیسری شکل ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کفار نے بندی بنا لیا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرایا جائے گا۔ کسی مسلمان کو کفار نے بندی بنا لیا ہو تو اسے بھی غلام سمجھا جائے گا اور اسے زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرایا جائے گا۔ ان چاروں قسموں میں، یہ جو 4 قسمیں میں نے ذکر کی، ان چاروں قسموں کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ چاروں ہی کسی اور کے ہاتھ میں کسی سامان اور مال و متاع کی طرح سے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مالک جو چاہے وہ کرے۔ غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غلام کو مال دیا جائے تاکہ جا کر کے اپنے مالک کو دے کر کے وہ آزادی حاصل کر لے۔
दूसरा तरीका यह है कि गुलाम को माल ना दे करके डायरेक्ट उसके मालिक को दिया जाए कि भाई ये लो माल, इस गुलाम को आजाद कर दो। इन दोनों तरीकों से माल दे करके गुलाम को आजाद कराया जा सकता है। अब यहां पर सवाल आता है, जदीद दौर का सवाल। यह सवाल यह है कि क्या ज़कात के माल से जेल में बंद कैदियों को आजाद कराया जा सकता है कि नहीं। हमारे जमाने में जो लोग जेल के अंदर सजा काट रहे होते हैं, क्या ज़कात का माल खर्च करके उन कैदियों को जेल से रिहा कराया जाएगा। यह मालूम होने के बाद कि ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ गुलाम आजाद करना भी है, मौजूदा जमाने में सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या ज़कात के माल से जेल में बंद किसी मुसलमान कैदी को आजाद कराया जा सकता है। इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि क्या गुलाम और जेल में बंद कैदी दोनों एक ही हैं और दोनों में फकत नाम का फर्क है या दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि अगर दोनों एक ही हैं और फर्क फकत नाम का है तो बेशक जेल में बंद कैदी की आजादी के लिए ज़कात का माल खर्च किया जाएगा, इसलिए कि नाम का इख्तिलाफ कोई माना नहीं रखता, असल एतबार हकीकत का है। लेकिन अगर जेल में बंद कैदी और गुलाम की हकीकत में फर्क है तो ऐसी सूरत में उसकी रिहाई के लिए ज़कात के उस मद को खर्च नहीं किया जा सकता जो गुलामों की आजादी के लिए है, क्योंकि ये बात तो तय है कि ज़कात का माल खर्च करके आजादी उसे दिलाई जा सकती है जो गुलाम है। अगर हम गुलाम और जेल में सजा काट रहे कैदी पर गौर करें, दोनों पर गौर करें, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दोनों के दरमियान एक नहीं अनेक फरूक हैं और उन फरूक का ताल्लुक नाम से नहीं है बल्कि हकीकत से है और दोनों के अहकाम में भी बहुत ज्यादा फर्क है। मैं यहां पर फरूक तो कई सारे हैं, मैं यहां पर चंद फरूक का जिक्र कर रहा हूं। पहला फर्क, गुलाम की हैसियत एक माल की होती है जो कि अपने आका की मिल्कियत है, जबकि जेल में बंद कैदी किसी की मिल्कियत नहीं है। वो एक आजाद और खुद मुख्तार इंसान होता है जिसे किसी जुर्म की वजह से जेल में बंद कर दिया गया है ताकि उसे अपने जुर्म की सजा मिले, उसकी इस्लाह का काम हो सके और समाज व मुआशरा को उसके शर से महफूज रखा जा सके। नंबर 2, गुलाम अपने आका के मरने के बाद तरीका में शुमार होता है क्योंकि वो माल है। अगर उसका आका मर गया तो अब वो गोया कि माल है, उसके वरसा में हो जाएगा और वारिसीन की मिल्कियत में चला जाता है, जबकि कैदी कभी भी किसी का तरीका नहीं होता है। नंबर 3, गुलाम किसी माल का मालिक नहीं बन सकता क्योंकि उसकी हैसियत अपने आका के माल की है, जबकि जेल में बंद कैदी का मामला ऐसा नहीं है। वो कैदी माल का मालिक होता है, उसका अपना घर बार माल जायदाद होता है। नंबर 4, गुलाम को उसका आका जब चाहे बेच सकता है क्योंकि गुलाम उसकी मिल्कियत है, जबकि कैदी को बेचा नहीं जा सकता। वो अपनी सजा की मुद्दत गुजार कर जेल से रिहा कर दिया जाएगा या फिर उम्र भर जेल में रहेगा, मगर किसी भी हाल में उसे बेचा नहीं जा सकता। नंबर 5, गुलाम को मुख्तलिफ किस्म के कफारात में आजाद करने का हुक्म है, जैसे कत्ल का कफारा, जिहार का कफारा वगैरह वगैरह, जबकि जेल में बंद कैदी को इन कफारात में रिहा नहीं किया जाएगा। नंबर 6, किसी मुसलमान को गुलाम बनाना जायज नहीं है, किसी मुसलमान को गुलाम बनाना जायज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई गुलाम इस्लाम कबूल कर ले तो भी वो गुलाम ही रहेगा, जबकि मुसलमान को उसके जुर्म की सजा में जेल में डाला जा सकता है। नंबर 7, गुलाम को उसका आका मुदब्बर बना सकता है, यानी उसे अपनी मौत के बाद आजाद कर सकता है, जबकि कैदी के साथ यह मामला नहीं है। उसे भला मुदब्बर कौन बनाएगा, वो किसी खास आदमी का कैदी नहीं है। नंबर 8, गुलाम से उसका आका मुकातबा कर सकता है, जबकि जेल के कैदी से मुकातबा नहीं किया जा सकता। नंबर 9, लौंडी से उसका आका सोहबत कर सकता है, जबकि जेल में कैद औरत से ऐसा करना हराम और जुर्म है। नंबर 10, गुलाम का बच्चा गुलाम ही होगा, जबकि कैदी का बच्चा कैदी नहीं होगा। नंबर 11, गुलाम का वला आजाद करने वाले के लिए होगा और वो उस आजाद करता गुलाम का वारिस होगा, जबकि कैदी को रिहाई दिलाने वाला उसका वारिस नहीं होगा। नंबर 12, किसी गुलाम का निस्फ आजाद किया जा सकता है, किसी गुलाम को आधा आजाद किया जा सकता है, जबकि किसी कैदी को आधा
आजाद नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा कैदी है आधा आजाद है। मज़कूरा बाला उसूल नीज गुलाम और जेल में बंद कैदी के दरमियान फर्क से हमारी शरीयत के अंदर एक उसूल है। यहां पर उलमा और तुल्लाबुल इल्म बैठे हुए हैं। हमारी शरीयत के अंदर एक फन है, फन्ने जमा व फर्क, जिसको कि अल फुरूक अल फ़िक़हिया कहा जाता है। बहुत सारे उलमा का यहां तक कहना है, इब्नुल क़य्यिम वगैरह का, कि अगर किसी आलिम को फुरूक फ़िक़हिया का इल्म नहीं है तो उसके लिए फतवा देना जायज ही नहीं है। यह इतना अहम फन माना जाता है। फुरूक फ़िक़हिया ही से मुताल्लिक एक कायदा है हमारी शरीयत में कि अल जम्उ बैनल मुतमासिलात व तफ़रीक़ बैनल मुख्तलिफ़ात, जिसका माना है कि शरीयत में दो मुमासिल चीजों के दरमियान फर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि उन पर एक ही हुक्म लगाया जाएगा, और दो मुख्तलिफ चीजों को जमा नहीं किया जाएगा बल्कि उन पर अलग अलग हुक्म लगाया जाएगा। ये उसूल है। अब इस उसूल की बुनियाद पर नीज गुलाम और जेल में बंद कैदी के दरमियान फर्क की बुनियाद पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि ज़कात के माल से कैदी को रिहा कराना जायज नहीं है, इसलिए कि गुलाम को ज़कात के माल से आजाद करवाने की इल्लत गुलामी का वस्फ है, और यह वस्फ कैदी के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोनों के दरमियान मुतअद्दिद फुरूक है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। जेल के अंदर बंद कैदी को ज़कात के माल से रिहा करवाने की एक सूरत है। वो सूरत क्या है? जेल के अंदर बंद कैदियों की दो किस्में होती हैं। किसी जेल के अंदर बंद कैदी की दो किस्म हो सकती है। पहली किस्म यह है, वो कैदी जो हकीकत में मुजरिम है, ऐसा कैदी जो हकीकत में मुजरिम है और अपने जुर्म की सजा काट रहा है, वो जेल से रिहाई चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे माल दरकार है। जाहिर है जेल से रिहाई के लिए कई दफा माल चाहिए होता है, जो कि उसके पास नहीं है, और वो फकीर व मिस्कीन है। बहैसियत कैदी तो उसकी रिहाई के लिए ज़कात का माल खर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ना तो वो गुलाम है और ना गुलाम के हुक्म में है, क्योंकि उसके और गुलाम के दरमियान मुतअद्दिद फुरूक है, जैसा कि अभी जिक्र किया गया। बहैसियत फकीर व मिस्कीन भी उसको ज़कात के माल से रिहा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो फकीर व मिस्कीन वो है जिसके पास अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए माल ना हो, और वो अपने जुर्म की सजा काट रहा है, इस बात का हकदार नहीं है कि वो जेल से रिहा हो, लिहाजा ये उसकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत में शामिल नहीं है। यानी ऐसा कैदी जो अपने हकीकत में मुजरिम है और अपने जुर्म की सजा काट रहा है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि जेल से निकलना उसका हक है, वो मुजरिम है, सजा काटना उसका हक है, लिहाजा जेल से निकलना उसकी बुनियादी जरूरत नहीं है जिसको कि हम ज़कात से पूरी करें। दूसरी किस्म कोई ऐसा कैदी जो बेगुनाह है, लेकिन उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके उसे जेल में डाल दिया गया है और वो अपने नाकर्दा गुनाह की सजा काट रहा है, जैसा कि कई कैदियों के साथ होता है। बहैसियत कैदी उस पर ज़कात का माल खर्च नहीं किया जा सकता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया गया। बहैसियत कैदी उसे आजाद नहीं कराया जा सकता ज़कात के माल से, लेकिन अगर वो मजलूम कैदी फकीर व मिस्कीन है और उसे जेल से रिहाई हासिल करने के लिए पैसों की जरूरत है, जिसे वो अपने फक्र की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ज़कात का माल खर्च करके उसको रिहा कराया जाएगा। क्यों? क्या इसलिए कि वो कैदी है? नहीं, इसलिए कि वो एक ऐसा फकीर और मिस्कीन है जो अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। उस बेकसूर की बुनियादी जरूरत है जेल से निकलना। जैसे इंसान की बुनियादी जरूरत है खाना पीना, उसी तरह उस बेकसूर की बुनियादी जरूरत है जेल से निकलना, लेकिन उसके पास इस काम के लिए पैसा नहीं है, तो लिहाजा उसे फकीर होने की हैसियत से ज़कात का माल देकर के आजाद कराया जाएगा, ना कि इसलिए कि वो जेल में बंद है और वो कैदी है। ज़कात का माल उस पर खर्च करना इसलिए जायज है क्योंकि वो एक ऐसा मजलूम है जो फकीर व मिस्कीन होने की वजह से अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। एक मजलूम का जुल्म से निजात पाना उसकी दीगर दुनियावी जरूरतों की तरह ही है, बल्कि तमाम जरूरतों से बढ़कर है। पता ये चला
کہ اس فقیر مظلوم قیدی کو زکات کا مال خرچ کر کے اس لیے نہیں رہا کرایا جا رہا ہے کہ وہ قیدی ہے، بلکہ اس پر زکات کا مال اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ فقیر ہے، ایسا فقیر جو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ مظلوم قیدی اگر امیر ہوتا تو اس پر زکات کا مال خرچ نہیں کیا جاتا۔ اگر مان لیجئے کوئی قیدی، بے قصور قیدی ایسا ہے جو امیر ہے، اپنا مال لگا کر کے نکل سکتا ہے جیل سے، ہم اس پر زکات کا مال خرچ نہیں کریں گے۔ اگر قیدی ہونا یہ سبب ہوتا اسے زکات دینے کا تو ہم فقیر اور امیر میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی قیدی ہے وہ بھی قیدی ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے، اصل جو سبب ہے، اصل جو علت ہے، جو مناط الحکم ہے، وہ ہے اس کا فقیر ہونا، نہ کہ اس کا قیدی ہونا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔